Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the concepts that we covered in the previous lectures with the help of different activities and the mind map. So dear students, अपने lecture को हम start करते हैं with the first activity. आपको अपनी screen के ऊपर वो activity visible हो रही होगी. यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस गिवन हैं और सेकंड साइड पे आपके पास तमाम प्लैनेट्स के नाम लिखे गए हैं. तो आप जल्दी से इन डिस्क्रिप्शंस को रीड आउट कीजिए और इनको करेक्ट प्लैनेट के साथ मैच कीजिए. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ. हियर यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वाज प्लूटो रीक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. वेरी गुड. So next हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, which is basically a diagram. You have to label the mentioned parts. This is the diagram of the structure of the earth. So by keeping the knowledge of structure of earth in mind, quickly solve this activity. Very good. So next है हमारे पास 3 heavenly bodies that are asteroids, comets and meteors. और यहाँ पर आपके पास characteristics दी गई हैं, तो आप इन characteristics को read कीजिए और देखिए कि either ये appropriate category आपके पास इनमें से किस heavenly body में मौजूद हैं, और जहाँ पर ये मौजूद होंगी वहाँ पर आप इसको tick mark करेंगे. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, in which you list 3 uses of artificial satellites in the daily life. Very good. So that's all about the activities. Let's now revise the chapter with the help of a mind map. So dear students, हमारा ये chapter solar system के बारे में था, जिसको हमने देखा कि ये ऐसी planets पर मुश्तमिल है जो कि सूरज के गिर्द revolve करते हैं due to its gravitational force. फर्दर हमने डिस्कस किया इनके 8 planets के बारे में, हर planet के character के बारे में. These planets includes Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. फर्दर हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि हमारे पास 9th प्लैनेट भी था सोलर सिस्टम के अंदर फ्यू इयर्स बैक, एंड दैट प्लैनेट वाज द प्लूटो, विच वी नाउ रीक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. और हमने अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे गौर करें तो दीज आर द स्मॉल प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड दे हैज इनफ ग्रेविटी टू पुल इट्स ऑन मास इनटू राउंड शेप. और इसके अलावा हमने प्लूटो के अलावा और भी बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स को डिस्कस किया था. फर्दर हमने 3 हेवनली बॉडीज को डिस्कस किया, दैट आर कमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स. द कमेट्स आर बेसिकली द आइसी हेवनली बॉडीज जो कि सूरज के गिर्द रोटेट करती हैं. हमने इनकी 3 बेसिक पार्ट्स को डिस्कस किया था, दैट आर न्यूक्लियस, कोमा एंड टेल. अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें तो these are the rocky bodies that are too small and they come from the broken pieces of the stars. Basically they are found in the asteroid belt that is located between Mars and Jupiter. Next अगर हम meteor की बात करें तो these are the small rocky or the metallic body that orbit around the sun, और आप इसको easily naked eye से देख सकते हैं. फर्दर हमारे पास थे सैटेलाइट्स, और हमने इसको डिफाइन किया कि these are the objects that revolve around the planet, and we classified satellites into 2 types. The first one is the artificial satellites, which are basically man-made objects that orbit around the earth. The second one is the natural satellites that are naturally found and orbit around the planets. For example, as moon revolve around the earth, so we called हम moon को कह सकते हैं कि ये एक natural satellite है. फर्दर हमने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के फ़वाइद को डिस्कस किया, उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया. दैट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट मॉनिटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, the GPS that is used for navigation and positioning, further the weather satellite which is used for weather forecasting, and last one is the communication with the help of which we can easily communicate. हम easily आपस में communicate कर सकते हैं. और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था सन के बारे में, और हमने इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से अपने डिफरेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया और माइंड मैप के ज़रिए से उनको अगेन एक दफ़ा से रिवाइज़ किया. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.